contemporary, edgy, dealing with LGBTQ conflict, extreme poverty, discrimination, bullying, they are not being translated. And so children are in fact not relating to the books that they're even getting through what little access they have. It's not the books that they want to read. I have worked with over 3 lakh children throughout the country. I'm a world record holder for helping over 3,000 children make the world's longest newspaper, which is a world record. And what children were demanding and what they're asking for are the issues that all children worldwide, why only in India, worldwide, childhood issues are childhood issues, and it doesn't matter where, which state, which language. They need to go beyond the moralistic stories, the Purans, the Panchtantra, wonderful as those stories are. How can we say that children won't relate? We expect them to relate to stories written 3,000 years ago. And we say that they won't relate to, as you said, an Uriya story, even in Andhra Pradesh, who are neighbors. How can it be? What are we saying? We are blind to what children are asking and demanding and needing. My own stories are translated into several foreign languages. They are not translated into my own languages. Again, in my research, again this thing of safe stories. So there are picture books available in Indian languages. Picture books are there, which are safe, animal stories, stories of nature, stories of Meri Maa, Mera Pyara Kutta. But what about the gritty stories, the gritty issues that children actually deal with and face on an everyday basis? So I think it all boils down to the fact that for older children, what are we defining as children's literature? Only picture books? What about all the other categories that Dash Benhar mentioned? What about teenagers? What about middle grade readers, adolescents, young adults? All of that is recognized as children's literature everywhere except in our languages, where it's sadly still missing. It's a battle that I've been battling since the 1990s. It's 2024. Sahitya Academy's own translation program, and while I'm very grateful to Sahitya Academy for having this session at all, let's also face the bitter truth, and I use the word bitter consciously, the bitter truth that's the Bal Sahitya Puraskar winners have not been translated into other languages. Part of the brief of Sahitya Academy is that award-winning books will be translated into minimum 12 languages. As far as I know, as far as I've been able to find out, I don't know, is there somebody from Sahitya Academy, I hope, who can correct me, I wish they can, to say that none of the award-winning books, including my own, have been translated into Indian languages till now. I won it in 2017, the Bal Sahitya Puraskar. Not one translation has been brought out so far. I don't agree with the relatability factor. In fact, look, children who are reading are going to become very powerful adults. Children who are reading will be in the Indian Foreign Service, in the Indian Administrative Service, in all the, they are the ones who are sitting for these exams and going to the states. If in childhood we have not, through stories, created an empathetic generation coming up, how are they going to work with any empathy when they go to the States? And I think this is an important...
So relatability, range, and also the transmigration. We need to rely upon agencies such as the Sahitya Academy to bring about translation and a vibrant translation program. I can't even say revive it because it's non-existent. One child in Kerala said to me after I had read a book based in Kashmir, Noganza, at my son's funeral, and she said such a powerful thing. She said, I always knew that people are dying in Kashmir. I never thought of people living in Kashmir, and I thank you for this story. And then she went on to say something which gave me goosebumps and tears at the same time. How can I read this story in Malayalam because I can't read in English? And my answer to her was, you can't. It doesn't exist. Thank you. Thank you, Paro Anand. The last speaker is Vikas Dave. धन्यवाद। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय तपन बंदोपाध्याय जी, दाश बेनहुर जी, दीपा अग्रवाल जी और पारो आनंद जी। सामने सदन में बैठे आप सभी को भी प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि कई चेहरे चिर परिचित हैं और बच्चों से लगातार जुड़े हुए हैं। उषा जी बैठी हैं, सुमन जी बैठी हुई हैं। बच्चों को कहानियां सुनाना और बच्चों के को आनंद के सागर में गोते लगवाना, इस काम में लगे हुए अनेक बंधु भगिनी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। दरअसल बच्चों के साहित्य पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। केंद्र की साहित्य अकादमी ने एक बड़ा अच्छा उपक्रम यहाँ पर संयोजित किया और हम उस युग में बैठ कर के बच्चों के साहित्य की बातचीत कर रहे हैं जब यूनाइटेड नेशंस ने संपूर्ण विश्व के अनेक देशों के लगभग 100 से ज़्यादा देशों के बच्चों पर एक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण का निष्कर्ष जो आया, बहुत मोटा निष्कर्ष है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा। उस निष्कर्ष का पहला जो पैराग्राफ है उसका पहला वाक्य यह है कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व आतंकवाद से बड़ी एक विभीषिका से जूझने वाला है और वह विभीषिका यह होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पौध केवल लिसनर और व्यूअर बन करके रह जाएगी, रीडर नहीं बचेगी। उस युग में हम बाल साहित्य की चर्चा कर रहे हैं और बाल साहित्य की चर्चा में भी बहुत महत्वपूर्ण विषय यह कि अनुवाद की परंपरा हमारे बाल साहित्य में कितनी रही भारत में और उसमें मूलतः विषय कौन कौन से हैं जो लगातार इस अनुवाद को प्रभावित करते रहे। मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन वेद हैं। वेद की एक ऋचा है, मूल ऋचा को उद्धृत नहीं कर रहा, लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा ने हमको कहा कि ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर से आने दीजिए। यदि आप सचमुच प्रकाशित होना चाहते हैं तो प्रकाश के आने की कोई दिशा मत रखिए। और ठीक यही बात पूज्य बापू ने कही। बापू ने थोड़ा सा सामान्य जन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने कहा अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दो, ज्ञान की हवा पता नहीं किस खिड़की से प्रवेश कर जाए। दरअसल अनुवाद के मूल में यही भाव है। हम जब बाल साहित्य का अनुवाद करते हैं तो निश्चित तौर पर ज्ञान की अनेक परंपराओं को आमंत्रण देते हैं। मैं जब बहुत छोटा सा था, एक छोटे से गांव का रहने वाला मध्य प्रदेश के, और मैंने अपने बाल्यकाल में अपने गांव की एक छोटी सी लाइब्रेरी में अनुवादित विश्व बाल साहित्य के वो ग्रंथ पढ़े जिनको आज, जबकि मैं बाल साहित्य के क्षेत्र में लगभग अपने जीवन के 3 दशक से अधिक व्यतीत कर चुका हूं, मेरा पीएचडी, डीलिट सब कुछ बाल पत्रकारिता, बाल साहित्य में है, और आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में पूरे भारत का एकमात्र शोध केंद्र संचालित होता है, भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान। वहां पर 88 पीएचडी के शोध कार्य हमने केवल बाल साहित्य पर संपन्न करवाए हैं। इस सब को करते हुए मुझे कई बार इस बात का आभास होता है कि सचमुच यदि बाल्यकाल में मैंने काठ का पुतला या सिंदबाद जहाजी, गुलिवर की यात्राएं, ये सब पुस्तकें न पढ़ी होती
तो क्या मेरे हृदय में वह बीज वपन होता क्या, जिसके कारण से जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के मैं बाल साहित्य से जुड़ पाया। और इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अनुवादित बाल साहित्य है, विशेष करके अनुवाद की परंपरा में हम सब लोग जानते होंगे कि चित्रकथाओं ने, कॉमिक्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहां अधिकांश लोग जो हम सब बैठे हैं, मैं भी चूंकि 55 से ऊपर का हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि हम सब लोगों ने बाल्यकाल में जिन कॉमिक्स को, चित्रकथाओं को पढ़ा, उनके पात्र सामान्यतया पश्चिमी जगत से आयातित थे। हमने सबसे पहले टार्जन से परिचय पाया, हमने उसके बाद फेंटम से परिचय किया, और ये वेताल की कथाएं जब हमारे मानस पर रच पच गई, उसके अनेक वर्षों के बाद जाकर के मुझे लगता है कि भारत की नई पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि उन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों पर अपने पौराणिक आख्यानों के, आज हम देखते हैं छोटा भीम संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाओं में अनुदित होकर के, या कृष्ण की बाल लीलाएं सारे विश्व को प्रभावित कर रही है, बच्चों को जीवन मूल्य प्रदाय कर रही है। तो भारतीय साहित्य वास्तव में इस प्रकार के अनुवाद के कारण से न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि विश्व के बाल साहित्य को भी समृद्ध बनाने का काम हम सब ने मिलकर किया। हमारी परंपरा बहुत समृद्ध रही। पंचतंत्र का भी उल्लेख हुआ, पूर्ववक्ता ने बताया, लेकिन केवल पंचतंत्र ही क्यों, हितोपदेश, सिंहासन बत्तीसी, वेताल 25, ये सारा का सारा, कथा सरित सागर, इन सबको यदि हम देखें, और विशेष करके जैन दर्शन में आने वाली जैन कथाएं, जिनमें अधिसंख्य कथाएं ऐसी है जो बच्चे को बाल्यकाल से संयम सिखाती है, अहिंसा सिखाती है, वे जीवन मूल्य देने का काम करती है, जिन जीवन मूल्यों को देने के लिए आज का अभिभावक तरस रहा है कि हमारे बच्चों को ये सब कैसे दें। वे सारी कथाएं बच्चों के जीवन का हिस्सा होना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब ने बच्चों के हाथ में ये 2.5 बाय 3 इंच की एक स्क्रीन थमा दी। इस मोबाइल पर वो WWE देखता है। हमको कभी आभास होता है क्या कि बुद्ध का, महावीर का देश, और यहां के बच्चे खून खराबा करते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं? उस समय अनुवादित बाल साहित्य की आवश्यकता तो है ही, किंतु आवश्यकता इस बात की भी है कि यह अनुवाद सबसे पहले भारतीय भाषाओं का परस्पर हो, उसके बाद विदेशी बाल साहित्य को हम सब अनुवादित करके भारत के बच्चों को सौंपे। यदि भारत का बाल साहित्य हम लाएंगे तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि भाषाओं की सीमाओं को पार करते ही ज्ञान की इतनी अपरिमित संभावनाएं बच्चों के समक्ष खुलेगी कि बच्चे आश्चर्य कर जाएंगे। महाभारत का मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा हूं, महाभारत की कथाओं का मंदारिन में, चीन में अनुवाद हुआ, और चीन की बेस्ट सेलर बुक्स बन गई। वो 1 वर्ष में बेस्ट सेलर बन गई। आखिरकार क्या है हमारे इस वांग्मय में, हमारे साहित्य की विशेषताएं क्या है? यदि इन सब को हम समझें, और एक बात अनुवाद के संदर्भ में और मैं कहना चाहता हूं, यदि हम सचमुच बाल साहित्य में, मैं पिछले दिनों लगातार विगत 20-25 वर्षों से रिसर्च भी करवा रहा हूं निदेशक के नाते हमारे शोध केंद्र में, मुझे ध्यान में आया कि जो साहित्य की विधाओं का वैविध्य बड़ों के साहित्य में उपलब्ध है, वह बच्चों के साहित्य में नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण बाल साहित्य भारत का, उसमें से कहानी, कविता, नाटक भी अब बहुत कम मात्रा में लिखे जाते हैं, केवल कहानी और कविता आप उससे अलग कर दें तो दूसरे पलड़े में इतना कम साहित्य बचता है कि साहित्य की शेष सारी विधाओं पर लेखन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाल साहित्य में, भारतीय भाषाओं में, यदि हम केवल बांग्ला की कहानी, मराठी के रेखाचित्र, गुजराती के संस्मरण, तमिल के ललित निबंध कहा जाता है, कठिन विधा मानी जाती है साहित्य की, लेकिन तमिल में बच्चों के लिए बहुत अच्छे ललित निबंध लिखे गए। पिछले दिनों मैंने तमिल से अनुवादित एक तालाब की आत्मकथा, एक ललित निबंध है। तालाब कैसे मर रहे हैं, अनुपम मिश्र जी याद आते हैं। तब लगता है कि यदि तमिल से हिंदी में अनुवाद हो, हिंदी से अंग्रेजी में जाए, तो कितना बच्चों को इस सब का लाभ मिल सकता है। और इसलिए इन सब के बीच में अनुवाद में चूंकि हमको उसकी समस्याओं पर भी बात करना है, समाधान पर चर्चा करना है, तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम सब मिल करके क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाषाओं में अनुवाद करने के पहले इस बात की चिंता करें कि उस भाषा के संस्कार उस अनुवाद में जीवित रहें। मैं हमेशा इस विषय पर बात करते हुए कहता हूं कि जैसे गंगा जल को पवित्र तो कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें औषधीय गुण है, मेडिसिन जैसा माना जाता है गंगा जल को। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो जब बह करके आता है तो जिन पर्वतों से वो नीचे उतरता है, उन पर्वतों से नीचे उतरते हुए
उसमें उस पर्वत पर उपस्थित सारे जड़ें, पेड़ पौधे, फल पत्ते, उन सब का रस समाहित होता जाता है। भाषा की भी ये विशेषता होती है। यदि आप भाषा की संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो अनुवाद में सतर्कता की आवश्यकता है। मैं कई बार मजाक में 2 उदाहरण देता हूं। अगर आप ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजनिया का किसी अंग्रेजी के लेखक से अनुवाद करवा लें और किसी ब्रिटेन के बच्चे से पूछें कि इसका अर्थ क्या है, तो शायद वो कहेगा कि कोई व्यक्ति है जो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, संभवतः उसने ड्रिंक किया हुआ है। या आप कह दें कि राधिके तूने बंसरी चुराई का आप अंग्रेजी में अनुवाद करो, मिस राधा यू आर स्टोलन माय फ्लूट, और किसी अंग्रेजी देश के बच्चे से पूछें इसका अर्थ क्या, तो कहेगा कोई लड़की है, चोर है, सामान्य सी 2 रुपए की बांसुरी चोरी कर ली है। लेकिन भारत का बच्चा हाथ जोड़ करके कहता है राधे रानी सरकार की जय, क्योंकि वो जानता है कि साक्षात दुर्गा का अवतार है। यह जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भाषा की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पृष्ठभूमि को हम सबको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कई बार कुछ शब्द ऐसे आते हैं। एक बड़ा मजेदार, मैं एक कार्यशाला लेने के लिए पूर्वोत्तर में गया हुआ था, बच्चों के साहित्य की अनुवाद की कार्यशाला थी। मैंने मणिपुर के बच्चों से पूछा कि आपके यहां सुबह के लिए कौन सा शब्द है। एकदम से बच्चे बोले मॉर्निंग, नई पीढ़ी है ना। तो मैंने कहा बेटा ये मॉर्निंग तो अंग्रेजी का है, मैं आपकी भाषा का शब्द पूछ रहा हूं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जो भाषाविद हैं उन सबको भी आनंद आएगा तपंदा, कि उन्होंने बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ एक शब्द नहीं है, एक शब्द युग्म है, फ्रेज है, जो सुबह के लिए प्रयोग किया जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उस शब्द को जब आप पढ़ते हैं तो वो बड़ा शब्द बनता है, कई शब्दों का समूह। वो कहते हैं जब कौवा युद्ध लड़ने का संकेत देते हुए आवाज लगाता है, ये सुबह का पर्याय। ऐसा क्यों हुआ होगा? वहां की पृष्ठभूमि को अनुभव करिए। सीमावर्ती प्रांत है, लगातार पुरुष वर्ग युद्धरत है, वहां पर संभवतः वहां की भक्षण पद्धति के कारण से मुर्गा जीवित नहीं रहा होगा, इसलिए केवल कौवा सुबह बोलता होगा जिसको खाया नहीं जाता। जी बस समापन कर रहा हूं। तो इसलिए मणिपुर में अगर इतना बड़ा फ्रेज है, तो आप जब हिंदी से मणिपुरी में करेंगे, मणिपुरी से हिंदी में करेंगे, तो इन सब चीजों की आपको थोड़ी सी चिंता करना पड़ेंगे। आपको अनुवाद में केवल यह करना है कि अनुवाद को युगानुकूल बनाए, आज के बच्चे को समझने योग्य बनाए, उसको देशानुकूल बनाए, अपने आसपास के परिवेश से वो उसको जोड़ सके, उसके बिंब, उसके प्रतीक, इन सब को भी देशज यदि हम सब बनाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अनुवाद के साथ हम न्याय कर पाते हैं। साइंस फिक्शन को लेकर के भी इन्हीं बातों को हम सबको ध्यान रखना है। साइंस फैंटेसी को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें भी परिवर्तन लाना है। जैसा मैंने कहा कि देशानुकूल बनाना है। एक प्राइवेट पब्लिशर ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी और वह पुस्तक थी प्राचीन विज्ञान कथाएं। कणाद को अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उनको यह जानकर आनंद होता है कि न्यूटन से सैकड़ों साल पहले कणाद ने सिद्धांत दिए हैं, आइंस्टीन से सैकड़ों साल पहले हमारे यहाँ पर भास्कराचार्य ने कुछ बातें कही है, और उन्हीं सिद्धांतों को पश्चिम का विज्ञान जगत वैसा का वैसा एडॉप्ट करता रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस देशानुकूल बाल साहित्य को सौंपने में यदि हमारी अनुवाद परंपरा सक्षम सिद्ध होती है तो ये हम सब लोगों का इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा अवदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।